Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for Plus 2 Arts Political Science. And the name of the chapter is End of Biopolarity. Now let us start with some MCQs from exam point of view. Which of the following statement about the Berlin Wall is false? Means false statement. इनमें से कुछ करेक्ट हैं और जो फॉल्स होगी वही उसका ऑप्शन होगा. लाइक फर्स्ट, इट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड. सेकेंड ऑप्शन, इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. थर्ड ऑप्शन, it was broken by the people on 9th November 1989. Last option, it marked the unification of two parts of Germany. So the option is B, it means it was built during the Second World War. जो explanation है why मतलब जो second option false है why. Berlin was built on 13th August 1961, but जो Second World War थी came to an end in 1945. Second question. The socialist movement was inspired by ideas of democracy, socialism, communalism and dictatorship. ऑप्शन है बी, मतलब सोशलिज्म. ये करेक्ट ऑप्शन. वाई? द रीजन इज दैट सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. एक्सक्यूज मी. which advocate that means of production, distribution, exchange should be owned or regulated by community as a whole. Next question. Which among the following statement wrongly describes the nature of Soviet economy? सोवियत इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब किया गया है. कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा वो हमें बताना है. सोशलिज्म वाज डोमिनेंट आइडियोलॉजी. सेकेंड, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल existed over the factors of production. People enjoyed economic freedom. Last option, every aspect of the economy was planned and controlled by the state. So यहाँ पर जो C statement है वही करेक्ट आंसर है, बिकॉज इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन जो है बेस्ड ऑन स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्टिव फार्मिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग. सो जो हाईली सेंट्रलाइज्ड सोवियत इकोनॉमी प्लानिंग थी उसको मैनेज किया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड सिस्टम. फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? मैनी न्यू स्टेट्स इमर्ज्ड. फर्स्ट. सेकेंड, Russia emerged as a new superpower. Third, power relations in world politics change. Last option, capitalist system emerged as the winner. तो इसमें हम अगर बात करें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है. वाई? द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक led to the disintegration of USSR. Which one of the following did Gorbachev not promise to reform? मतलब ड्यूरिंग कौन सी ऐसी थिंग्स थी जिसमें मतलब गोर्बाचोव ने ये रिफॉर्म्स के लिए प्रॉमिस नहीं किया था, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे. फर्स्ट है टू लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सेकेंड है टू कैच अप विद द वेस्ट टू रिफॉर्म द इकोनॉमी. और लास्ट ऑप्शन, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. आंसर इसका है डी ऑप्शन. इसकी एक्सप्लेनेशन है जो गोर्बाचोव
रिफॉर्म्स जो थे, gradualist and maintain many of the macroeconomic aspects of command economy, including इसमें था price controls, inconvertibility of the ruble, exclusions of private property ownership, government monopoly over most means of production. Next time, Mikhail Gorbachev was elected as the General Secretary of Communist Party of Soviet Union. कब हुआ? 1955, 1975, 1963 और 1985. आंसर आएगा 1985. Which one of the following was not an outcome of shock therapy? Shock therapy तो आप you all know that transition of socialism, communalism to modern, that means capitalist economy. But इसमें ये पूछा गया है was not an outcome of shock therapy. First option, the old system of social welfare get destroyed. Industries were put up for the sale to the private sector. The value of Russian currency ruble rose dramatically. Russia started to import food grains. तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, मतलब आंसर जो है वो सी ऑप्शन आएगा, बिकॉज जो वैल्यू है रूबल की, रशियन करेंसी डिक्लाइंड, इन्फ्लेशन रोज एट ए वेरी हाई रेट, लॉस्ट ऑल सेविंग्स ऑफ पीपल. Shock therapy involved a drastic change in dash orientation of economies. आंसर आएगा एक्सटर्नल, इंटरनेशनल, इंटरनल, ऑपोजिशन. तो जो ऑप्शन है एक्सटर्नल आएगा. The real GDP of Russia in 1999 below what it was in. मतलब जो रशियन करेंसी डिक्लाइन कर गई थी वो कौन से ईयर में गई थी? 1959, 1979, 1969, 1989. तो ऑप्शन है 1989 में ये करेंसी जो है काफी डिक्लाइन चले गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट सोवियत कंट्रीज underwent a process of transition from authoritarian society system to dash capitalist system. इसका आंसर आएगा डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, बिकॉज जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम था एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम था दैट कंबाइन कैपिटलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग सोशल पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अरब स्प्रिंग बिगिन विथ रशियन रेवोल्यूशन, तुनिशियन रेवोल्यूशन, इजिप्टियन रेवोल्यूशन एंड सीरियन रेवोल्यूशन. आंसर इसका आएगा तुनिशियन रेवोल्यूशन. तो रीजन इसके बिहाइंड ये है कि जो अरब स्प्रिंग था वाज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग एंड आर्म्ड रेबिलियंस that spread across much of the Arab world. First Gulf War, इसको क्या नाम दिया गया? First Gulf War is known as, options हैं Operation Infinite Reach, Operation Enduring Freedom, Operation Desert Storm, Operation Iraqi Freedom. आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. रीजन इसका ये है कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था नेम गिवन टू द 42 days US led air offensive in response to Saddam Hussein invasion of Kuwait. आज इतने ही क्वेश्चन. नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में रिवीजन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.